Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Hello friends, hope you are all doing fine by the grace of Almighty Allah. I am your English commentator Baba Nisar, live on ANN News. This is match number 6 to be played out here in Ghani Memorial Cricket Stadium, Rajouri Kadal, Srinagar. This is a Group A match and two teams fighting it out in the middle of this very Ghani Memorial Cricket Stadium, Rajouri Kadal, Srinagar. It's going to be SSM Cricket Club, the captain Mr. Riaz Gul, and this team is going to have its fight against the likes of Peace 11 Pulwama, captained by Mr. Mehraj Ahmed Parra. Even though SSM Cricket Club has already played one match in this league, eventually they have to have the loss. But today they will be trying to get pretty stronger back in this very match number 2 of their quota. SSM Cricket Club against the likes of Peace 11 Pulwama, match number 6, and this is Group A match. And definitely we can have the two teams along with some match officials likes of Javed Saab, likes of Sonu Saab, likes of the chief organizer, chief and editor of ANN News, Mr. Tariq Saab as well out here in the middle. And surely you are having the views and glimpses of this wonderful toss presentation from this Ghani Memorial Cricket Stadium, Rajouri Kadal, Srinagar. We're live on ANN News and we are about to have the flip of the coin for this match number 6. I would like to request the two captains, Mr. Riaz and Mr. Mehraj, please come to the front along with the match officials and they will go for the flip of the coin. Tariq Saab will just flip the coin. It's gonna, this is called, it's tail, it's head. Riaz Saab, congratulations, आपने टॉस बैटिंग करेंगे। बैटिंग करने की वजह? बैटिंग करेंगे, वो पिछली बार हमने चेज किया था मगर चेज नहीं कर पाए, थोड़ा सा प्रेशर रहता है चेज करने में। Couple of changes in your team or you go for the same team? 3 changes. Aftab Manzoor in place of Akif Parra and Wasim and Umar lefty. Plans today different? Yes, of course. हम चाहेंगे कि 200 तक स्कोर करें, 200 तक टारगेट सेट करें तो उसके बाद चलिए अच्छी बात है। Congratulations for winning the toss and batting first. Mehraj, tough luck, आपने टॉस हारा लेकिन फिर भी आपको बॉलिंग करनी पड़ेगी, क्या कहेंगे? अल्लाह का शुक्र है कि पूरे इस जो टूर्नामेंट है ANN न्यूज़ का जो तारिक भट्ट साहब है, जो उसका टीम सुपर और उसका टीम ने जो कारकर्दगी दिखाई और ऐसा प्लेटफार्म खड़ा करके दिया तो और ये जो टैलेंट छुपा था ये बाहर आएगा। तो जो टीम सुपर ने दिखाया मैं उसका वेलकम करता हूँ। और ये टास्क की बात, हारना जीतना तो टास्क तो, लेकिन ये वो मैच हारना जीतना नहीं होता है। तो इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे 150 से पहले रोकने की, तो इंशाल्लाह वी विल वन मैच। अगर बॉलर्स की बात करेंगे, अगर आप करना चाहते हो 150 160 पर, तो कुछ बॉलर्स पर आपकी नजरें, तो उनके नाम जरा मेंशन। हाँ, मैंने अपनी टीम में खिलाए हैं यंग बॉलर्स जिनको आज मतलब यहाँ पे पहली बार खेल रहे हैं। तो इंशाल्लाह रहमान मुझे होप है कि वो अच्छी कारकर्दगी करेंगे, उसके बाद हम 150 से पहले ही उनको रोक सकेंगे। न्यू एक्सपीरियंस प्लेइंग आउट हियर इन ये जो गनी मेमोरियल स्टेडियम है। हाँ, न्यू एक्सपीरियंस है। चलिए, थैंक यू वेरी मच मिस्टर Mehraj Parra, the captain of Peace 11 Pulwama. So coming to the toss presentation, definitely the news over here. It's captain Mr. Riaz Gul from SSM Cricket Club. He has started to go for the batting first. But before we go for the action, umpires are having a part of a words to go with the captains. अस्सलाम वालेकुम। 2020 का फॉर्मेट तो पता ही है सबको, ठीक है। इन केस ऑफ अगर रेन हो गया यहाँ पे तो फर्स्ट इनिंग में तो 1-1 पॉइंट शेयर होगा, वो ऑफिशियल्स डिसाइड करेंगे मैच होगा कि नहीं होगा। अगर सेकंड इनिंग में मैच हुआ बंद तो 5 ओवर कम से कम होने चाहिए। उसके बाद डेक क्लोज मेथड अप्लाई होगा, डीएल होगा, उसमें विकेट भी मैटर करता है और रन्स भी, वो आपको डिटेल दिया जाएगा किस ओवर में कितने रन्स आपको करने हैं। और ख़ासकर टाइम का ख्याल रखना है। एसएसएम टीम आधा घंटा लेट थी, हमने आज इनको अब ओवर्स डायरेक्ट नहीं किए, इसलिए नहीं किए क्योंकि थोड़ा सा पिच भी तैयार हमने छोड़ दिया आज। नेक्स्ट टाइम ऐसे नहीं होना चाहिए और 90 मिनट्स में ओवर्स ख़त्म होने चाहिए। 90 मिनट्स में जिस टीम का नहीं ओवर्स कंप्लीट हो गए उसका एक्स्ट्रा फील्डर अंदर आ जाएगा, ठीक है। ये हमने रूल रखा है, ठीक है। और रिव्यू यहाँ पे नहीं होगा अब, क्योंकि रिव्यू हमने वो ख़त्म कर दिया क्योंकि उसमें थोड़ा सा दिक्कत भी आ रही थी, तो उसकी वजह से हमने वो रिव्यू सिस्टम ख़त्म कर दिया।
So the news from the centre is that captain Mr. Riaz Gul from SSM Cricket Club has won the toss and has decided to bat first in this match number 6 of Group A. We'll be shortly back with the action on ANN News. Till then, you take your time. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. तू जीते या फिर हारे हमको तुमसे है प्यार अभी और बहुत मैदान है तू खेल खेल मैं खेल दिखा मैदान में तू खेल दिखा मैदान में तू खेल दिखा क्रिकेट गिनने ड्राई लो दोस्त सरी आई लो क्रिकेट गिनने ड्राई लो दोस्त सरी आई लो जोश सरी आमची रंग रंग वर्दी लगती क्रिकेट मैच जमाई लो दोस्त सरी आई लो क्रिकेट मैच जमाई लो दोस्त सरी आई लो बॉल वाज चिली सिटी बॉल अपोर बैट्समैन ने रन करे चोर क्या बैट्समैन ने रन करे चोर क्या बैट्समैन ने रन करे चोर बॉलर लोग कताई लो दोस्त सरी आई लो बॉलर लोग कताई लो दोस्त सरी आई लो क्रिकेट गिनने ड्राई लो क्रिकेट गिनने ड्राई लो कश्मीर के शाही जलवे दिखा, 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 कश्मीर के शाही जलवे दिखा,
दिखा कश्मीर के शाही जलवे दिखा घुमा के बल्ला लगा दे पार पलक झपक के उड़ा दे गिली तेरे हर कदम पे लाखों दुआएं बिजली की रफ्तार दिखा कश्मीर के शाही जलवे दिखा कश्मीर के शाही जलवे दिखा कश्मीर के शाही जलवे दिखा
के शाही जलवे दिखा तू जीते या फिर हारे हमको तुमसे है प्यार अभी और बहुत मैदान है तू खेल खेल मैं खेल दिखा खेल दिखा मैदान में तू खेल दिखा मैदान में तू खेल दिखा क्रिकेट गिनने ड्राई लो दोस्त सरी आई लो क्रिकेट गिनने ड्राई लो दोस्त सरी आई लो जोशान सरी आमची रंग रंग वर्दी लगती क्रिकेट मैच जमाई लो दोस्त सरी आई लो क्रिकेट मैच जमाई लो दोस्त सरी आई लो बॉल was chilly sitting ball aboard batsman ने रन करे जोर क्या batsman ने रन करे जोर क्या batsman ने रन करे जोर बॉलर लोग कताई लो दोस्त सरी आई लो बॉलर लोग कताई लो दोस्त सरी आई लो क्रिकेट गिनने ट्राई लो क्रिकेट गिनने ट्राई लो कश्मीर के शाही जलवे दिखा 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 विकेट भी तेरा बैट भी तेरा शॉट लगा रन बना दिखाते जलवे चौके छक्के बाजू तेरे जैसे बिजली कश्मीर के शाही जलवे दिखा 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 घुमा के बल्ला लगा दे पार पलक झपक तीन बह वापस पन्निस पॉइंटस पे तो तमें ओतर अस्सलामुअलैकुम गनी मेमोरियल स्टेडियम राजौरी कदल से आपका बराह रास्त इस्तकबाल है एसएसएम क्रिकेट क्लब बनाम पीस क्रिकेट क्लब पुलवामा के दरमियान मुकाबला शुरू पहली गेंद ऑफ स्टंप से बाहर कट किया बैकवर्ड पॉइंट फील्ड मौजूद कोई रन नहीं और इस तरह से टॉस के हवाले से खबर आई है कि यहां एसएसएम की टीम ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया है और सलामी बल्लेबाज सजाद और आसिफ भट्ट तो इस तरह से एसएसएम की टीम जिन्होंने इस लीग का पहला मुकाबला हारा है और अब वो चाहेंगी आज एक शानदार जीत से आगे बढ़ा जाए पहला रन बोर्ड पर लॉन्ग ऑन की जानिब और इस तरह से मैं कमेंट्री बॉक्स में इरफान भट्ट और मेरे साथ बाबा निसार Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Thank you Irfan for introducing me once again to the commentary box and you got it pretty right, mentioned that the toss, a very important toss won by the captain of SSM Cricket Club, Mr. Riaz Gul. Talking about their first match already, they surely got the loss, a defeat in their first inaugural cricket encounter over here. But the way they won the toss out here in this very, it's the overall sixth match of the Group A if we talk about. And he said on the toss presentation, will definitely love to come back stronger. And that is why they have come back with a couple of changes, around 3 changes in their playing 11 today. It's 1 on the board for the loss of no. Right, so आसिफ भट्ट के लिए पहली गेंद डाउन द लेग साइड और पहला एक्स्ट्रा रन बोर्ड पर स्कोर 2 किसी नुकसान के बगैर। आसिफ भट्ट से काफी उम्मीदें वाबस्ता हैं, लेफ्ट हैंड बल्लेबाज हैं और यकीनन जिस फॉर्म से वो इस वक्त गुजर रहे हैं काफी शानदार फॉर्म है उनके पास। लेकिन पिछले मुकाबले की अगर बात करें
महज 19 रन बनाकर आउट हुए थे और टीम को उनकी ज़रूरत थी। आज बिल्कुल देखना होगा, अगली गेंद को पुल कर दिया है मिड विकेट की जानिब, 1 रन हासिल और आसिफ भट्ट ने अपना खाता खोला इस सेकंड की मदद से। You know, if we talk about Peace Cricket Club, Peace 11 Pulwama, you know, I would love to say this thing, they come up with their all players, you know, from the same vicinity. I believe it's a good thing. You know, setting the platform for their concerned players, giving them this kind of a boost. I believe not having any players from the outer district believing in their potential. And Peace 11 Pulwama definitely will love to fight out in this very match of this J&K Qualifiers League. यकीनन काफ़ी सारी निगाहें और काफ़ी सारी उम्मीदें वाबस्ता हैं ज़िला पुलवामा के तमाशाइयों के, क्रिकेट के शायकीन की, और यकीनन आज पूरी नज़रें रहेंगी पीस 11 पर। और इस तरह से यहाँ हालांकि अगर उन्होंने टॉस हारा भी है लेकिन बावजूद इसके एक बेहतरीन आगाज करना पसंद करेंगे। अगली गेंद पुल कर दिया इस गेंद को और गेंद स्क्वायर के ऊपर से शानदार छक्का सज्जाद का। Well, that's surely bad line, giving him bit of a length, especially just goes onto the back foot, and all he needed to do was to pull it and down to the backward square leg region for a massive 6. So the first 6 of the innings, and score shift us to 9. We have a ball left of the very first over. It's Muzaffar is operating from that par end. 2 slips in place, a gully, a backward point, cover, a mid-off on the upside, a square leg and a long on. This time onto the forward, and just pushes the ball straight onto the mid-wicket region. They chip in for another run. That's the end of first over. 10 on the board. SSM winning the toss and batting first. तो इस तरह से एक शानदार छक्का पहले ओवर में और स्कोर 10 किसी नुकसान के बगैर पहले ओवर के बाद। ज्वेलरी तो सब खरीद लेते हैं, लेकिन खास ज्वेलरी खास लोग ही पसंद करते हैं। कारीगरी ऐसी जो मन को छू ले और खिदमत ऐसी जो दिल को छू ले। तो हमें खिदमत करने का मौका दे और तशरीफ लाएं असावीर ज्वेलर्स, कश्मीर का अपना ब्रांड, हरी सिंह हाई स्ट्रीट, श्रीनगर। मुखलिसाना और ताजगी से भरपूर कंवल मसाले, वादी का दर्जे अव्वल और अपना ब्रांड। ये सिर्फ मसालों तक ही महदूद नहीं बल्कि कंवल आप तक जायकेदार अच्छा। राइट सर, दूसरा ओवर शुरू। पहली गेंद नो बॉल की कॉल की है अंपायर जावेद ने और इस तरह से आदिल को लाया गया है गेंदबाजी करने के लिए। हालांकि आउटसाइड द ऑफ स्टंप ये पिच हुई गेंद, फुल लेंथ डिलीवरी और इस तरह से ओवर स्टेप कर गए वहां गेंदबाज। और अब देखना होगा कि क्या अगली गेंद जो कि फ्री हिट के तौर पर मिलने वाली है यहाँ सजाद को, क्या वो इस फ्री हिट का फायदा उठा पाएंगे या नहीं। वेल ओवर की गेंद, पट की भी गेंद, शॉट ऑफ लेंथ लेकिन सीधे विकेट कीपर के दस्तानों में और स्कोर अभी भी 11 किसी नुकसान के बगैर। तो इस तरह से यहाँ अगरचे प्लेइंग 11 नुमाया कर दिया जाए स्क्रीन पर तो हम भी वाकिफ हो जाएंगे और नाज़रीन भी वाकिफ हो जाएंगे। Indeed, definitely. We'll love to have the playing 11 above the teams on the screens, and viewers definitely love to have it. Here we go with Peace 11 Pulwama. अगली गेंद उड़ता हुआ शॉट मिड विकेट के ऊपर से, गालिबन स्क्वायर लेग के ऊपर से सीधे रूफ पर और छक्का। Well, I believe intentions are looking quite clear today from SSM Cricket Club, knowing we have already gone with a loss in the first important encounter, and today come up with the big plans, you know, giving charge on the very first power play, and the way this shot was played, I believe it surely are trying to cross a mark of around 180 and put the opponents into the pressure situation straight away. राइट सो अगली गेंद को ड्राइव किया और लगभग कैच ड्रॉप हो गया और गेंद कवर बाउंड्री लाइन से बाहर। एक शानदार चौका, काफी महंगा ओवर रहा और लकी रहे सज्जाद। Absolutely, Sajjad must be taking himself quite lucky, but the cover fielder, had he gone for a try, had he gone for a bit of a jump, I believe he could have made his hands reach to the ball. But ultimately, it's the luck favoring Mr. Sajjad. Going on to 18 of 9. And just let's have a look at the score. Quickly, it's gone on to 21 for none. We're in just over number 2.
तो इस तरह से सजाद जिन्होंने अपने अज़ाइम का ऐलान आगाज़ में ही बुलंद किया, एक शॉर्ट गेंद ऑफ स्टंप से बाहर कट करने की कोशिश, लेकिन वाइड का इशारा अंपायर के द्वारा, और यहाँ स्कोर मज़ीद आगे बढ़ता हुआ 22 किसी नुकसान के बगैर। तो आज एसएसएम की टीम जो है चाहेगी एक बड़ा स्कोर खड़ा करे, हालांकि जिस तरह से टॉस के वक्त उनके कप्तान रियाज गुल ने यहाँ ओवर की गेंद, नो बॉल। Well, he will have to surely check his foot over there, bowled second no ball of the over, has bowled already wide as well, so 3 extras already, and guess what? It's gonna be the free hit, and having free hits more often in this video, I believe Sajjad will definitely love to enjoy it. Here he goes, this time keeping low, not getting the connection, it's straight to the wicket keeper. And talking about this opening pair, a great start as far as SSM Cricket Club is concerned. डेफिनेटली, और इस ओवर की अगर बात करें तो 2 नो बॉल्स, एक वाइड और उसके साथ साथ एक छक्का चौका, इससे यकीनन बल्लेबाज का जो कॉन्फिडेंस है वो हाई हुआ है। अगली गेंद को चिप किया है ऑन साइड की जानिब, और फील्डर को बीट करती हुई गेंद मिड विकेट बाउंड्री लाइन से बाहर गई है। 2 बाउंसेस के साथ 4 रन के लिए काफी महंगा ये ओवर, और अभी भी एक गेंद बाकी। Well, let's have a look at this over. A 6 conceded, 2 boundaries conceded, a wide conceded, 2 no balls conceded. I believe this is surely going to be very expensive, and Adil surely has to check his line. That's why the cover fielder is having a bit of a chat with him. You need to bowl more on the off stump, because the way we have been set the field for this batter. That's why, no, my goodness, what a shot! Pitched it over and making sure just hitting it straight in the air. And the ball just dispatched onto the long off region for another 6 of the video. So 2 overs gone, it's 33 for no. Muzaffar Ahmad. So we believe quite a very good score as far as PS11 Pulwama concerned, having such experienced players in the team, some young guns as well playing. Overall, we believe it's a balanced team. It's a balanced score for PS11 Pulwama. But as the captain mentioned, Captain Mehraj Parra on the toss, it's surely going to be a fresh experience for them. And definitely, playing in this very venue for the first time, so they will have to face some difficulties to settle themselves, but they can't afford to bowl these kinds of lengths. And if we talk about their last over that was hit for around 20 runs, very expensive. अब आसिफ भट्ट सामना करेंगे ओवर की पहली गेंद का। पैड लाइन पर एक गेंद अपील हो रही है, लेकिन यहाँ एक रन लेग बाई के तौर पर हासिल होगा टीम एसएसएम क्रिकेट क्लब को। और जिस अंदाज का उन्होंने सलामी बल्लेबाजों का पेयर यहाँ मैदान पर भेजा है, तो यकीनन उनकी उम्मीदों को जला बख्शते हुए, खासतौर से सज्जाद की अगर बात करें, उन्होंने अब तक 28 रन बनाए हैं 13 गेंदों में। और यहाँ आसिफ भट्ट का बल्ला, उनका बल्ला अभी तक नहीं बोला है। जब आसिफ भट्ट का बल्ला भी बोलेगा तो मुझे लगता है यहाँ हल्ला बोलेंगे वो। अगली गेंद पुल करते हुए एक और छक्का मिड विकेट के ऊपर से। I can simply say Sajjad is having the game. He's having the sure innings of his career today. Just having fractional short deliveries, just transferring his weight onto the back foot and just smashing them over the far. Especially he's attacking onto the onside, and that's why we believe quickly has gone into 34 of just 14 balls. Just look at the score. It's 40 for none. Believe it, only 2.2 overs have been bowled. This man is having a song today. और मौजूदा रन रेट की अगर बात करें, it's 17.14, और यहाँ से एक विकेट हासिल करनी बेहद लाजमी टीम पुलवामा के लिए। Indeed, need of the hour for them to get a wicket quickly, or else it's pretty late for them. Next one, just driven on the onside. The long on comes in to stop the ball. Easy pickings for Sajjad. Chips on to 35 of 15, and score goes to 41. And talking about the run rate, just over 17, especially if you are playing in the power play, the first power play of our innings.
I believe they're making the game pretty easy for the rest of the batters to come and play the natural and aggression. यकीनन और मिडल ओवर्स में जब मध्यक्रम के बल्लेबाज आएंगे बल्लेबाजी करने के लिए उनके लिए काम बड़ा आसान हो गया है यहाँ से और यकीनन उनके लिए जो प्लेटफॉर्म क्रिएट किया है दोनों बल्लेबाजों ने, खासतौर से सजाद की बात करें, अगली गेंद आसिफ भट्ट के लिए और बैकवर्ड आसिफ भट्ट ने ऑन साइड जाने टर्न करने की कोशिश लेकिन कामयाब नहीं हुई। और बात कर रहे थे हम मिडिल ऑर्डर की, यहाँ एसएसएम का जब बल्लेबाजी करने के लिए आएगा तो यकीनन उनके जहन में, उनके ख्यालात में यहाँ यही एक मॉरल बूस्ट रहेगा कि उनके लिए पावर प्ले का इस्तेमाल सही हुआ है और प्लेटफॉर्म रहेगा उनका, वो भी एक अच्छा स्कोर खड़ा कर सकते हैं। Indeed, and in between, let's talk about the field setup. And we've got a slips, we've got seconds. Oh, down the leg stump, I believe, and this one has been given a delicate touch. And the ball just racing away down to the fence for 4 runs. सो इस तरह से शायद गेंद बल्ले पर लगकर गई हैं और अंदरूनी किनारा लगा है आसिफ भट्ट के बल्ले से। आसिफ भट्ट का पहला चौका और 45 स्कोर आखिरी गेंद इस ओवर की। हालांकि दोनों बल्लेबाजों के दरमियान मुख्तसर सी गुफ्तगू और अब क्या पैगाम दिया होगा आसिफ भट्ट को सजाद ने, ये रद्द-ए-अमल जाहिर करेंगे वो इस गेंद पर। And I was giving you the description of the field. Slips in place, second slip a bit wider, gully, backward point cover, mid off, and that's why this time fiercely cut, but straight to Miraj at the point region. Top. And talking about this very third over completes, it's 45 for none. Talking about the run rate, Irfan, that is, much bigger. It's 15 at the moment. If we talk about the dominant of the two batters, Sajjad just batting on 35 of just 15 balls, and now we believe it's been introduced, and wicketkeeper now comes pretty close behind the stumps. Still we go with 4 fielders square after wicket behind the square, just gully, point, slips. We believe backward point as well. That means the bowler has to surely try to bowl around that off stump channel, and if he tries to go for that square drive, he may be chipping the ball in the air, and there arises some chances of a catch. अगली गेंद फॉरवर्ड आकर गेंद को ड्राइव किया, मिसफील्ड हुआ वहां शॉर्ट कवर के फील्डर से और एक रन हासिल करते हुए दोनों बल्लेबाज। हालांकि यहाँ सज्जाद स्ट्राइक पर मौजूद है, वो यहाँ बड़ी तेजी के साथ बरक रफ्तारी के साथ 36 पर पहुंचे। मैच 16 गेंदों का उन्होंने मुकाबला किया और एसएसएम का स्कोर बगैर किसी ताखीर के बरक रफ्तारी के साथ 46 किसी नुकसान के बगैर। और हालांकि पावर प्ले का ये 4वां ओवर है और इसके बाद अभी भी 2 ओवर मजीद बाकी हैं पावर प्ले के। Here goes Niaz. This one, my goodness, he was trying to give it a heave. And this ball was bowled a bit quicker. A great piece of work behind the stumps by the keeper. Ultimately, no damage done. This is a good contest going on. And SSM Cricket Club are surely having the upper hand. Next one, driven beautifully. But there is a deep point fielder. Just a single will accrues. And with that single, score shifts to 47. And having left and right in combination out there in the middle for SSM Cricket Club. This is indeed a tough task for the bowlers and the fielders to settle themselves on their right spots. And I believe it's right-handed batsman now who's having a very intentional skill at this time. Driven the ball, that's in the gap. The ball is racing away between the cover and the point region, and in a hurry the ball just crossed the fence for 4 runs. Just watch that ball played beautifully. Just leaning forward, stretching forward, and all he needed to do was bisect the gap and find the boundary. बैकवर्ड पॉइंट और पॉइंट के फील्डर के दरमियान को ऐसे गेंद को निकालकर यहाँ बड़ा बेहतरीन और उम्दा
चौका हासिल किया है सज्जाद ने, और सज्जाद की बल्लेबाजी से अब तक यही वाज़िह हुआ है कि वो यकीनन बल्लेबाजी में जो महारत रखते हैं उस महारत का यहाँ बखूबी इजहार करते हुए अगली गेंद काट किया इस गेंद को, लेकिन फील्डर गली की पोजीशन पर मौजूद, गालिबन बैकवर्ड पॉइंट की पोजीशन पर, शॉर्ट बैकवर्ड पॉइंट, और अभी भी यहाँ अगर देखा जाए तो दो ही फील्डर्स दायरे से बाहर हैं, जिसका उठा रहे हैं पावर प्ले के ओवर्स में SSM क्रिकेट क्लब। 51 स्कोर है किसी नुकसान के बगैर। And if we talk about the tournament so far, I believe this is the very fastest runs that have been scored, especially talking about the power play. 50 completed only in 4 overs. So 4 overs done. It's 52 for none. SSM Cricket Club winning the toss and batting first. I'm so sound. कप्तान महराजुद्दीन गेंदबाजी करने के लिए आए हैं। महराजुद्दीन पर्रा इस वक्त अपने तखय्युल अपने मंसूबे के तहत वो फील्डिंग को तश्कील देते हुए उनके ओवर की पहली गेंद फ्लाइट का इस्तेमाल ऑफ स्टंप से बाहर कट करने की कोशिश, लेकिन पहली गेंद पर बीट हुए। And Irfan, let's talk about his brother. He's such a destructive player, Parvez Parra, who is famously known by the name of Nick Parra, but not playing today for Peace 11 Pulwama. You believe they must be surely missing him in the team. अगली गेंद को ड्राइव किया, फील्ड टॉस गेंद, और वहां डीप एक्स्ट्रा शॉर्ट एक्स्ट्रा कवर के फील्डर को बीट करते हुए गेंद गई है बाउंड्री लाइन से बाहर। शानदार शॉट, 4 रन्स। पर्रा परवेज की अगर बात करें तो मेरे फेवरेट खिलाड़ी हैं वो, और यकीनन जिस भी टीम के खिलाफ खेलते हैं उनकी गेंदबाजी को तबाह करके रख देते हैं। डाउन द ट्रैक आए और फील्डर को बीट कर दिया और गेंद दोबारा से बाउंड्री लाइन से बाहर, इस मर्तबा हदफ चुना लॉन्ग ऑफ बाउंड्री लाइन। And let's talk about this demolishing knock of Sajjad. Just look at his total. It's 49 of his 22. That is surely, carnage going on at the moment by Sajjad. He is not allowing the bowlers to settle their line this time. Just drives it square straight to the gully and for no runs. And talking about his batting, the man you find, the right-handed batsman at your screen, Mr. Sajjad. Just look at 49 of 22, 5 fours and 4 brutal sixes, run rate, the strike rate of over 200. This man is sure class, a pure class. अपना काम कर गए हैं यहाँ सजाद, और अपनी निसफ सेंचुरी के दरवाजे पर दस्तक देते हुए अगली गेंद को हल्की हाथों से मोड़ दिया और अपनी निसफ सेंचुरी बड़े खूबसूरत अंदाज में पूरी करते हुए सजाद मैच 23 गेंदों का उन्होंने मुकाबला किया, और इस तरह से यहाँ उनके खेमे में तमाम तर खिलाड़ियों ने उनकी तालियों से दाद दी और इस दाद तहसीन का उन्होंने बल्ला हवा में लहराते हुए जवाब दिया। Indeed, he deserves appreciation. He deserves applaud. There you see, he's being hugged and patted by his partner, Mr. Asif, as well. And talking about his glorious start, the way he's just keeping himself on, nudging the ball, hitting the ball, driving the ball. Everything looks quite smart as far as batting is concerned. आसिफ भट्ट के लिए ओवर की गेंद, आसिफ भट्ट ने बल्ला घुमाया और गेंद को हवा में उठा दिया, नीचे फील्डर लॉन्ग ऑन की पोजीशन पर और आउट। And I believe this is wonderful catch. Not easy to take this catch. Simply running and forward, and ultimately making no mistake. And the left-handed batsman Asif will have to depart it finally. The captain, Mr. Mehrajuddin Parra, he comes up with a breakthrough. Ultimately, this breakthrough was vital for the team of Peace 11 Pulwama, because they were surely going through the carnage of these two. वेल आसिफ भट्ट का इस J&K क्वालिफायर्स लीग में खराब परफॉर्मेंस, खराब फॉर्म कंटिन्यू है और यकीनन वो अपने आप से नाखुश, इस परफॉर्मेंस से नाखुश होंगे और बिलाखिर अपनी विकेट गंवाकर वापस मैच 6 रनों ने बनाया। आज 8 गेंदों का मुकाबला किया जिसमें एक चौका शामिल है और इस तरह से वापस पवेलियन का रुख करते हुए
62 स्कोर, 1 विकेट के नुकसान पर आउट होने वाले बल्लेबाज आसिफ भट्ट। एसएसएम क्रिकेट क्लब का पहला नुकसान और अब बासित आए हैं नए बल्लेबाज के तौर पर। बासित यहाँ विकेट का रिप्ले, पूरी तरह से वो स्ट्रोक में नहीं आए और लाइन में नहीं आए, ऐसे में गेंद काफी ज्यादा हवा में उठी। दाद देनी होगी फील्डर की, शानदार कैच। Indeed, it was a wonderful catch, a great catch, I believe. Just running forward, not easy to have your eyes on the ball. The ball was in the air for a long fair bit of time, and finally just caught onto that catch, I believe. Great catch eventually. So we find the new batsman out there in the middle, Mr. Basit now, and is going to get started to face Niaz, who will be into his second over, conceding 7 off his very first. We believe Cully backward point, straight point, and talking about the covers and the long off as well on the onside, a fine leg inside the circle on the onside, a short mid wicket, a catching position inside the circle. Here goes Niaz, this time a bit quicker, hitting him on his thigh, no damage done, and it's a dot ball. 62 for 1. And Sajjad, the man who goes past his half century, that is surely a wonderful, a classic shot, and a classical knock from this man. And he needs to continue. He has gone, he has passed his half century, I believe. Here, he will definitely try to shift his game now. इस तरह से यहाँ पावर प्ले का ये आखिरी ओवर जारी है। 62 स्कोर और सजाद का जिसमें बेशतर ताउन रहा है इन 62 रनों में 50 रन सजाद के नाम, और इस तरह से वो सामना करेंगे ओवर की अगली गेंद का। ओह माय गुडनेस, he has been cleaned up. That is surely a great ball. I was telling you, this Niaz is bowling a bit quicker. He just played across the line, missed the line completely, and the bails were surely dislodged, wept like a delivery bowled by this Mr. Niaz. So believe it, it's a sure comeback for Peace 11 Pulwama. Getting 2 wickets back to back. Both the openers have been dismissed, and score stays on 62. But ultimately coming back to the knock of this man. The way I believe Sajjad batted, he batted beautifully for his half century. Glorious knock. वेल अगर बात करें यहाँ 2 विकेटें जो गिरी हैं आसिफ भट्ट और सजाद ने 26 गेंदों में 50 रन बनाए और एक बेहतरीन नॉक खेलकर वापस पवेलियन का रुख इख्तियार करते हुए। फिलहाल यहाँ अगर देखा जाए भी पावर प्ले की 3 गेंदें बाकी हैं और दाद देनी होगी यहाँ पीस 11 पुलवामा की। नियाज ने जिस तरह से एक बड़ी विकेट हासिल की और यहाँ पीस 11 पुलवामा की उम्मीदों को एक बार फिर से जला बख्शी, एक बार फिर से उनकी उम्मीदों को तरोताजा किया, और इस तरह से यहाँ जो सेट बल्लेबाज सजाद थे उनको वापस भेजा। कहीं ना कहीं पावर प्ले में अगर कहा जाए तो एक हल्का सा सुकून मुयस्सर होता हुआ पुलवामा की टीम को। Indeed, looking at the first 3 overs or 4 overs, SSM Cricket Club was surely going dominating, but a setback for them and a comeback for Peace 11 Pulwama. 2 dangerous batters gone, especially the half centurion departed, and credit must be given to Niaz. Great over, bowling that very dangerous batsman. And now, the batsman who is making his arrival, it's Mr. Akib. He's another right-handed batsman now, getting ready to face Niaz, who has scored a wicket. He is into his second over. It's 62 for 2. तो इस तरह से यहाँ बेशतर खिलाड़ी ऑफ साइड पर तैनात और महज 3 खिलाड़ी ऑन साइड पर। हल्के से स्टार्ट के साथ ओवर की गेंद, फॉरवर्ड आकर गेंद को गाइड करते हुए बैकवर्ड पॉइंट की जानिब, वहाँ फील्डर मौजूद। इस ओवर से अब तक कोई रन नहीं बना है, हालांकि अगर देखा जाए तो एक विकेट जरूर आई है, और मुझे लगता है कि ये 6ठा ओवर पावर प्ले का काफी भारी पड़ने वाला है टीम एसएसएम क्रिकेट क्लब के ऊपर, और दाद देनी होगी नियाज की। नियाज जिस अंदाज से वो गेंदबाजी कर रहे हैं, अगली गेंद एक और डॉट डिलीवरी, और अब आखिरी गेंद इस ओवर की बाकी। वेल बाबा, टॉकिंग अबाउट दिस ओवर, absolutely magnificent. Indeed, 5 balls bowled, no run resulted, a wicket. And can we have a wicket maiden over here? Niaz should try to just bowl this one, the last one as a dot bowl, and have this over as the wicket maiden. Here he goes in bowls to Akif. Right arm over, nice ball and nicely played down to that deep long leg region. The ball is crossing, yes it does. That was very bad line, bowling all those 5 deliveries onto the cards and just chipping in down the leg stump, and that was a delicate touch by Akif, and finding boundary on the last ball, and it's
6 overs done, power play completed. 66. They are going with a run rate of 11 runs per over. स्कोरर से दरख्वास्त यहाँ एसएसएम क्रिकेट क्लब की टीम का स्कोर कार्ड यहाँ स्क्रीन पर अगर नुमाया करेंगे तो बिल्कुल नाजरीन भी इससे वाकिफ हो जाएंगे। हमारे स्कोरर हैं नईम, श्रीनगर के गनी मेमोरियल स्टेडियम से आपका इस्तकबाल है। मैं हूं इरफान भट्ट और मेरे साथ हैं बाबा निसार। मेराजुद्दीन पर्रा यहां 7वें ओवर का आगाज करने के लिए आए हैं। और अब फील्डिंग के हवाले से अगर बात करें, क्योंकि पावर प्ले का इख्तिताम हुआ है, अब फील्डर्स को आजादी है दायरे से बाहर रहने की। Indeed, next ball just driven, tried to stop it with the help of his boot, but eventually mid-wicket fielder doing the job for Mehraj. But Captain Mehraj, bowling in a slower delivery is giving more flight to the ball. And here he goes once again. This time beautifully plays the ball. Has the ball carried all the way? Yes, it has. That's a wonderful stroke from this man, Basit. He just finding the ball in the slot. All he needed to do was trying to dispatch it over the long on. Glorious shot from him and score shifted to 72. You can't afford to bowl those more flighting deliveries to the batsman. He just needs to chip in and just bang the ball, and the last ball was surely played well. Next ball just driven straight to the mid-off. It turns out to be a dot ball. And Mehraj should try to use variations, not only flighting the ball, he should try to bowl some, we believe straighteners. He should try to bowl some top spins as well. Next one, driven, rather pulled. But there is a sweeper at the deep mid-wicket region, just a single. And talking about Mehraj, he is a strong character, the brother of dangerous Parvez Parra from Pulwama. And once again, we find left and right hand combination over there. A bit of an exercise for the fielders as well. यकीनन एक तो लेफ्ट एंड राइट हैंड कॉम्बिनेशन यहाँ दर्द सर बनता जा रहा है टीम पुलवामा के लिए। और अगर बात करेंगे यहाँ मेराजुद्दीन पर्रा की, अभी तक उन्होंने जो गेंदें फेंकी थी वो काफ़ी फ्लाइटेड थी और काफ़ी कम रफ्तार वाली गेंदें थी, लेकिन अब जो ही उन्होंने रफ्तार का इस्तेमाल किया और अंपायर ने इस गेंद को नो बॉल करार दिया। It's gonna be the free hit for the legs of Akib. In goes Mehraj. Bowler just one down the legs to my believe. It's gonna be called as a wide. Yes, it is. 2 extras on the 2 balls. First one turning out to be a no ball, second one turning out to be a wide ball. Surely these runs are playing a better role when we come to the verdict of the verdict of the game. He definitely needs to check his line from here. Oh, the wicket this time. Oh, keeping low. Batsman misses, wicket keeper misses, and third man has to do the job. He does eventually. Ample time for the 2 batters to go for 2 more runs. So after the completion of 7, it's 77 for 2 with a run rate of 11. Akib 4 and Basit is batting on 7. इंजीनियरिंग हो या मेडिकल, आकाश इज बेस्ट। आकाश का फोकस अपने हर बच्चे पर बिल्कुल बराबर होता है। आकाश में हम शुरुआत बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ करते हैं। होशियार से होशियार बच्चे को भी सही कोचिंग और सही गाइडेंस की जरूरत है। देखिए, आकाश अपनी बेस्ट फैकल्टी, बेस्ट करिकुलम और यूनिफॉर्मिटी सिस्टम की वजह से जाना जाता है। तो बच्चे का एडमिशन चाहे कश्मीर की ब्रांच में हो या फिर चेन्नई की ब्रांच में हो, उससे उसकी तैयारी पे कोई अंतर नहीं पड़ता। मैं तो यही सजेस्ट करूंगी कि आप बच्चे का एडमिशन अपनी नजदीकी ब्रांच में कराएं, ताकि बच्चे का ट्रैवलिंग में कम टाइम लगेगा। And let's talk about the match number 2 of the day. That's to be played here at 5:30, and we have some acknowledged players of the valley. We would love to have Nadeem Dar. We have got Adil Kohli. We have got Asif Manzoor, who has played at Mushtaq Ali Trophy. We have got Amir Lemon. We have got, I believe Adil Kohli as well. We believe we have got Akib Maxi playing. We got Ishfaq Preston. We got Asghar Pare as well. So
different and experienced, known players of the Valley will be playing for Soil Electronics Shopping against the likes of Zunimar Cricket Club. अगर आज के दिन के दूसरे मुकाबले की बात करें साइल इलेक्ट्रॉनिक्स शोपियन और ज़ूनिमर क्रिकेट क्लब के दरमियान बहुत ही दिलचस्प मुकाबला है। और अगरचे साइल इलेक्ट्रॉनिक्स की बात करें तो एक कॉम्पैक्ट टीम लेकर वो आ रही हैं यहाँ, ऐसा सुनने को आया है। और कुल मिलाकर दूसरा मुकाबला बड़ा सनसनीखेज और बड़ा दिलचस्प रहने वाला है यहाँ गनी मेमोरियल क्रिकेट स्टेडियम श्रीनगर में। इस बीच ओवर किया गेंद और बाहरी किनारा लेती हुई गेंद गई है सीधे थर्ड मैन बाउंड्री लाइन से बाहर 4 रनों के लिए और स्कोर में तेजी, स्कोर 82, 2 विकेटों के नुकसान पर। Well, having this kind of bowler on the cards at the moment, you definitely have to have a slips in place, not having pace in this bowler. And if you're bowling without a slips, I believe captain has to play a part over here, try to bring a slip on. Had there been a slip, this could have been a catch. But ultimately, no slips and ball just crosses over the third man for 4 runs. यहाँ स्कोर कार्ड सजाद मकबूल 50, आसिफ भट्ट 6। आज बिल्कुल उनकी खराब फॉर्म कंटिन्यू रही। इसके साथ साथ अब 1 डाउन और 2 डाउन बल्लेबाज इस वक्त मैदान पर है। इस अगली गेंद को निकाल दिया ड्राइव करते हुए, लेकिन फील्डर मौजूद है लॉन्ग ऑफ की पोजीशन पर, उन्हें बासानी गेंद को फील्ड किया। वेल, यहाँ रन रेट जो है, मौजूदा रन रेट 17 से अब थोड़ा सा नीचे आ गया है, गिर के 10.83 पर। और लेकिन फिर भी मैं समझता हूं कि यहाँ अभी भी एक मजबूत स्ट्रॉन्ग पोजीशन में है SSM क्रिकेट क्लब। Indeed, you got it right. A strong position they find themselves in. Still, this run rate is over 10. Next one, down the leg stump, must be called a wide. Yes, it is. And talking about the strength, the right form was set by Sajad Maqbool, who got to a half century. The way he just got it in just around 24 balls, I believe. That's why you find SSM Cricket Club in a strong position. Next one just pushes and patches the ball down to the mid-off region for no run. So I believe all these two batters at the moment, they need not to take any risks, no need to go for any risky strokes, just chip in with ones and twos and wait for the loose balls, and that definitely will come their way. Next ball just appealing for the LPW, not over there, and that turns out to be dot ball. राइट, सो 8वें ओवर के बाद स्कोर 84, 2 विकेटों के नुकसान पर SSM क्रिकेट क्लब यहाँ पुलवामा के खिलाफ। इंजीनियरिंग हो या मेडिकल, आकाश इज बेस्ट। आकाश का फोकस अपने हर बच्चे पर बिल्कुल बराबर होता है। आकाश में हम शुरुआत बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ करते हैं। होशियार से होशियार बच्चे को भी सही कोचिंग और सही गाइडेंस की जरूरत है। देखिए, आकाश अपनी बेस्ट फैकल्टी, बेस्ट करिकुलम और यूनिफॉर्मिटी सिस्टम की वजह से जाना जाता है। तो बच्चे का एडमिशन चाहे कश्मीर की ब्रांच में हो या फिर चेन्नई की ब्रांच में हो, उससे उसकी तैयारी पे कोई अंतर नहीं पड़ता। मैं तो यही सजेस्ट करूंगी कि आप बच्चे का एडमिशन अपनी नजदीकी ब्रांच में कराएं, ताकि बच्चे का ट्रैवलिंग में कम टाइम लगेगा। एक बार फिर से आप क्रिकेट के शायकीन का ANN न्यूज में खैर मकदम हैं। और इस तरह से यहाँ 90 ओवर का आगाज हुआ है, जबकि पहली गेंद डॉट। और यहाँ अगर देखा जाए आज J&K क्वालिफायर्स लीग का ये 6ठा मुकाबला है और SSM का दूसरा मुकाबला। Indeed, and let's talk about yesterday T20 format. T20 cricket match between India and West Indies. West Indies just getting over the line by a small margin of 4 runs. I believe West Indies cricket team is surely coming back stronger. They have a bit of a collapse, a bit of a downfall, but now beating the strongest team of the world at the moment, India, especially in T20 format. You believe that's a sign of a confidence for the West Indies? वेल, वेस्ट इंडीज की अगर बात करें, हालांकि तारीख गवाह है कि वेस्ट इंडीज की टीम ने किस तरह के कारनामा दुनियाई क्रिकेट में अंजाम दिए हैं। और कहीं ना कहीं उस चीज़ का असर रहता है, चाहे खिलाड़ी कितने भी नए हो, चाहे खिलाड़ी कितने भी इनएक्सपीरियंस हो, तब भी जो तारीख रही होती हैं क्रिकेट की, तो उसका यकीनन असर रहता है। और बात करते हैं अगर यहाँ T20 के लिहाज से, तो वेस्ट इंडीज की टीम T20 फॉर्मेट में कई ज्यादा स्ट्रांग है एज कंपेयर टू वनडेज। और कल जो शानदार उन्होंने जीत हासिल की है भारत के खिलाफ, तो यकीनन मैं समझता हूं कि
अगरचे वेस्ट इंडीज़ 50 ओवरों के वर्ल्ड कप से बाहर हो भी गई हैं, लेकिन फिर भी उनमें जो कैलिबर है T20 खेलने का, दैट इज़ क्वाइट brilliant. Indeed, looking at the type of the all-rounder they find in the shorter format of T20, you got it pretty right. West Indies cricket team find themselves as one of the best T20 teams in the world currently, if you ask me. But at the moment, if we talk about their 54 format, their test cricket format, there is a bit of a imbalance in their team. They need to fetch themselves back on the platform. Here we go. I believe 9th over done, and SSM Cricket Club are batting first after winning the toss. I believe 95 on the board. ज्वेलरी तो सब खरीद लेते हैं, लेकिन खास ज्वेलरी खास लोग ही पसंद करते हैं। कारीगरी ऐसी जो मन को छू ले और खिदमत ऐसी जो दिल को छू ले। तो हमें खिदमत करने का मौका दें और तशरीफ लाएं असावीर ज्वेलर्स, कश्मीर का अपना ब्रांड, हरी सिंह हाई स्ट्रीट, श्रीनगर। मुखलिसा नए ओवर की पहली गेंद स्लॉग कर दिया इस गेंद को लेफ्ट हैंडेड लेफ्टी ने, और गेंद सीधे तैरती हुई गई है डीप कॉर्नर बाउंड्री लाइन से बाहर 6 रन के लिए। Just a one-handed 6. You remember Rishabh Pant of India? डेफिनेटली यहाँ ऋषभ पंत की मुझे याद आ गई, और जिस अंदाज की उन्होंने पारी खेली थी पाकिस्तान के खिलाफ उस T20 मुकाबले में, और मुझे आज भी याद है जो भारत ने हारा था, और लेकिन ऋषभ पंत का बल्ला उस मुकाबले में चला था। And he is recovering these days, and hope we see him soon in back in Indian cricket team. लेकिन एक अहम रुकन है, एक अहम खिलाड़ी हैं भारतीय टीम की। अगर बात करें विकेट कीपर बैट्समैन ऋषभ पंत, और अगर वो एक्सटेंट से ना गुजरे होते तो मुझे लगता है कि काफ़ी आगे वो बढ़ गए होते, और आज फिटनेस के हवाले से भी वो पूरी तरह से फिट नहीं है और काफ़ी बल्की हो गए हैं अब आज, चूँकि बड़ा ख़तरनाक एक्सीडेंट उनके साथ वो वाक़या पेश आया। लेकिन काफ़ी सारे क्रिकेट के शायकीन की यही उम्मीद है कि वो बहुत जल्द भारतीय टीम में वापसी करेंगे। And the way he just came up with that approach in Test cricket, he still believes in that kind of aggression. When he was given a bit of a platform in playing Test cricket for India, he couldn't stop himself having his aggression on. He played with that moment of T20 and one-day format, and that's why I believe that was a part of a success for him. किसी खिलाड़ी में इस अंदाज की काबिलियत होती है, और इसका जवाब मैं आपसे यही कहूँगा कि आप देखिए जब से ब्रेंडन मैकलम कोच बने हैं इंग्लैंड क्रिकेट के, तो तब से उनका जो टेस्ट क्रिकेट है पूरी तरह से बदल गया है, और ये एक नेचर होता है खेलने का, द वे ही प्लेज इन द टेस्ट, डेफिनेटली दैट इज ब्रिलियंट। अगली गेंद फाइन लेग की जानिब, गेंद को शफल करते हुए खेल दिया है, और गेंद पहुंची है आहिस्तगी के साथ फाइन लेग बाउंड्री लाइन से बाहर 4 रनों के लिए। Let's talk about the aggression that has been completely changed, bringing into the limelight of England cricket team, having Brendan McCullum, the great wicketkeeper batsman of New Zealand, as their national coach. For the last 2 years, their, we believe, approach to the, Test cricket, that's completely different. They play a kind of a one-day approach in that kind. Oh my goodness! ये स्ट्रोक जोरदार और बैकवर्ड पॉइंट के फील्ड को बेट करते हुए गए हैं गेंद, अंपायर के दोनों हाथ फजा में बुलंद, एक शानदार छक्का, और इसी छक्के के साथ यहाँ 100 रन भी मुकम्मल, 104, 2 विकेट के नुकसान पर 10वें ओवर के बाद ऑफ स्टंप से बाहर ये गेंद मिली और बल्ला घुमाया इस गेंद पर, शानदार शॉट, ये मैग्निफिसेंट रिप्ले यहां पर, और गेंद पॉइंट के ऊपर से गई है 6 रनों के लिए। वेल 10 गॉन, इट्स 104 for 2। बासित बिलाल 16, आकिब यूसुफ 21, और वक्त हो चला है यहां स्नो ड्रॉप ड्रिंक्स ब्रेक का। क्रिकेट गिनने ड्राई लो लो, दोस्त दोस्त सरी आई लो
आई लो लो दोस्त दोस्त सरी आई लो लो क्रिकेट मैच जमाई लो लो दोस्त दोस्त सरी आई लो लो मुखलिसाना और ताजगी से भरपूर कमल मसाले वादी का दर्जे अव्वल और अपना ब्रांड सिर्फ मसालों तक ही महदूद नहीं बल्कि कमल आप तक जायकेदार अचार और शाही कहवा भी पहुंचाता है। ग़िज़ाइयत और लताफत से भरपूर कमल मसाले रखते हैं आपकी सेहत का ख्याल। हम हैं कमल मसाले। मसाले तो बहुत हैं, पर कश्मीर की कोख से खास चुने मसाले जिनकी ताजगी और स्वाद रहे बरकरार। ऐसे उम्दा मसाले बनाते हैं सिर्फ लज्जत मसाले। आपकी उम्मीदों पर खरा उतरना हर किसी के बस की बात नहीं, इसीलिए जदीद तकनीक से तैयार करदा लज्जत मसाले जिनमें मिठास से भरा हुआ लज्जत शाही कहवा और लज्जत मिर्च पाउडर, हल्दी पाउडर, सौंफ पाउडर, गरम मसाला, मीट मसाला और बिरयानी मसाला आपके पकवान को चार चांद लगा देते हैं। वादी कश्मीर ग्यारहवें ओवर का आगाज करने जा रहे हैं तारिक और उनने से कबल एक ओवर डाला है। पहली गेंद और गेंद को स्वीप कर दिया, टर्न्ड वेरी हैंडसमली और गेंद बैकवर्ड स्क्वायर लेग बाउंड्री लाइन से बाहर 4 रन के लिए और ये स्ट्रोक निहायत ही शानदार बासित का। And I believe Pulwama at the moment need to bring some changes in their fielding approach. You know, they need to attack, they need to provide some closing fielders and just try to have some more closing fielders, just try to get a wicket here, except if you provide them such kind of freedom, having a very 4 fielders inside the circle, having some fielders on the benches of those, you know, boundary lines. It's pretty easy for these left and right hand batters to go for the runs and exploiting the situations. Well, ये कप्तान को समझना है कि यहाँ जो 2 बल्लेबाज किस तकनीक के साथ बल्लेबाजी कर रहे हैं, किस एंगल से बल्लेबाजी कर रहे हैं, कहाँ ज्यादा स्ट्रोक्स खेल रहे हैं, वहां फील्डर्स को तैनात करें और इस तरह से गेंदबाज के साथ जो कोऑर्डिनेशन है उसको बरकरार रखें। और अगर देखा जाए तो यहाँ जो लेफ्ट हैंड बासित इस वक्त खेल रहे हैं, अगली गेंद यहाँ आकिब के लिए उड़ता हुआ शॉट और गेंद सेल करती हुई गई है लॉन्ग ऑफ के ऊपर से। अंपायर के इशारे से ये बिल्कुल तस्दीक हुई है कि ये छक्का है। I can simply say this is huge, high and handsome. A flight to delivery, all you need to do just using the full and straight part of the blade and just hitting it over long off. Ball just crossed and sailed over that long off fielder. That is indeed a massive touch from Akif. Just look at these 2 batsmen. Akif 27 of 14 and Basit 21 of 18. A simultaneous type of a score for the 2 batters. Just watch this ball. Flight in that ball, just coming, making sure, hitting him straight. And that was a wonderful shot, glorious shot that is. और बॉल भी यहाँ खो गई और ऐसे से अंपायर तारिक एक बॉल बॉक्स लेकर अब वापस आते हुए मैदान से 115 स्कोर 2 विकेटों के नुकसान पर यहाँ आकिब 27 पर पहुंचे हैं। दबाव एक बार फिर से तारिक पर। अगली गेंद फॉरवर्ड आकर इस गेंद को खूबसूरती के साथ ड्राइव किया, शॉर्ट कवर पर फील्डर मौजूद, लिहाजा 1 रन का इजाफा। और बात करें इस ओवर की, 12 रन आए हैं इस ओवर से। और इस तरह से ड्रिंक्स ब्रेक का जब वक्त हुआ था, अपने इंग्लैंड क्रिकेट के बारे में यहाँ जिक्र छेड़ा कि उनका क्रिकेट जो है पिछले 2 सालों से, उनका टेस्ट क्रिकेट खासतौर से पूरी तरह से तब्दील हुआ है। और यहाँ क्लीन बोल्ड, बैकफुट पर जूं ही जाने की कोशिश की बासित ने और इस तरह से उनकी तकनीक बिल्कुल फ्लॉप रही बैकफुट पर और इसी के साथ ही वो क्लीन बोल्ड हुए। Two things we did find on that last ball. One, it kept low, and second, it was going quick. And talking about that left-hand batsman Basit, it was a bit late to the shot, and I believe low bounce did better of him on that occasion. That's why we find Cunningham bowled. So number 3 goes. It's, I believe, 115 for the loss of 3 now.
बासित ने बनाया 21-19 गेंदों में 2 छक्के और 1 चौका। And talking about Pakistan cricket test strategy, they have also come up with one more strategy. You know, if you are playing test cricket, test match, there has been a proper planning. You know, you can't afford to bowl. You know, you can't afford to have 4 dot deliveries on the trot. You somehow need to bring a single on the 4th ball, and if you do, there has been a bit of a punishment for the cricketers out here in the test cricket team of Pakistan. What do you see this kind of a plan? Is it working for them? And they got a 2-0 test series against Sri Lanka, I believe. This was somehow a bit fruitful for them. डेफिनेटली जब भी आप कोई टीम प्लानिंग करते हैं, और चाहे वो गेंदबाजी के हवाले से हो या बल्लेबाजी को लेकर, तो एक पूरी तरह से टीम मैनेजमेंट कप्तान के साथ मिलकर बनती हैं, और उस चीज पर फिर अमल पैरा होना यकीनन टीम के लिए एक सूदमंद फायदेमंद साबित होता ही है। अगली गेंद या नए बल्लेबाज उमर के लिए फॉरवर्ड आकर ड्राइव किया, बॉलर्स बैक स्ट्रोक। फिलहाल यहां 11वां ओवर मुकम्मल, 116, 3 विकेटों के नुकसान पर SSM। इंजीनियरिंग हो या मेडिकल, आकाश इज बेस्ट। आकाश का फोकस अपने हर बच्चे पर बिल्कुल बराबर होता है। आकाश में हम शुरुआत बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ करते हैं। होशियार से होशियार बच्चे को भी सही कोचिंग और सही गाइडेंस की जरूरत है। देखिए, आकाश अपनी बेस्ट फैकल्टी, बेस्ट करिकुलम और यूनिफॉर्मिटी सिस्टम की वजह से जाना जाता है। तो बच्चे का एडमिशन चाहे कश्मीर की ब्रांच में हो या फिर चेन्नई की ब्रांच में हो, उससे उसकी तैयारी पे कोई अंतर नहीं पड़ता। मैं तो यही सजेस्ट करूंगी कि आप बच्चे का एडमिशन अपनी नजदीकी ब्रांच में कराएं, ताकि बच्चे का ट्रैवलिंग में कम टाइम लगेगा। इस तरह से यहां 12वें ओवर का आगाज। शौकत जो कि बदलाव के तौर पर आएंगे गेंदबाजी करने के लिए। पहली गेंद डाउन द लेग साइड और गेंद को स्वीप कर दिया है। बहुत ही उम्दा शॉट, गेंद बैकवर्ड स्क्वायर लेग बाउंड्री लाइन से बाहर गई है। एक और चौका और रनों की रफ्तार अब धीरे धीरे फिर से तेज होती हुई। Well, I believe, changing this very over, bringing Shaukat for the first time, in this very first innings, I believe, bowling fuller, giving ample time, that to bowling onto the pads. You believe this is not a great line? यहां मुझे लगता है कि अगर मीडियम पेसर या फास्ट बॉलर को अगर गेंदबाजी के मोर्चे तो शायद कुछ बढ़ता, लेकिन लगातार जो स्पिन कंसिस्टेंसी लगातार जारी है पीस 11 पुलवामा की जानिब से, तो कहीं ना कहीं बिल्कुल बासानी आराम से खेल रही है टीम SSM क्रिकेट क्लब, और अब तक काफी सारे रन्स स्पिन के खिलाफ भी आए हैं। और यहां अगली गेंद ड्राइव किया बैकफुट पर, और अगर देखा जाए तो अभी जो नए गेंदबाज हैं और कहीं ना कहीं उनको भी बिल्कुल उनका सामना भी यहाँ पर बिल्कुल बगैर खौफ के, बगैर डर के हो रहा है, और जानते हैं कि आके सेट होके इस वक्त बल्लेबाजी करना। उन्होंने 18 गेंदें खेली है, और यहां से अब मैं समझता हूं कि विकेट हासिल करनी बहुत जरूरी है इस पर पीस 11। Indeed. This time just deflects it down straight to the square leg, not going for any more runs. It's 121 for 3. And talking about the start that was provided, that was surely great. This time up the back foot, cuts it beautiful. My goodness, what a great stop! Just stretching his right boot out, and there he goes. Oh, almost had a shy on the non-striking stump as well. Luck not favouring him, I tell you, but eventually a great stop and save with 2 runs for his team here. Wow. Well, फील्डिंग की बिल्कुल मैं तारीफ करना पसंद करूंगा, लेकिन यहाँ से मुझे बिल्कुल लगा जिस तरह से उन्होंने थ्रो फेंका, लेकिन बहुत ही बड़ा नाकिस थ्रो था ये, क्योंकि फ्लैट थ्रो फेंकना वहां पर बिल्कुल रोकने में मुश्किलात हो रही हुई गेंदबाज को, और अगर ऐसे में थ्रो इस अंदाज से फ्लाइट बड़े अंदाज में फेंकते तो यकीनन गेंद आसानी से टप्पा खाती बिफोर द बॉलर, और यकीनन वो आराम से गैदर कर सकते थे, लेकिन एक और रन कंसीड किया ओवरथ्रो के तौर पर। अगली गेंद पुल करते हुए गेंद को मिड विकेट की जानिब, माय गुडनेस, मिसफील्ड, और गेंद 4 रनों के लिए बाउंड्री लाइन से बाहर। And you were just praising the fielding of Peace 11 Pulwama, and there we come the example, just going through the legs, and it goes through for 4 runs. So I believe Peace 11 Pulwama will definitely have to come with something extraordinary in their bowling. They are just losing the grip on the game.
losing the confidence as well. And just look at the body language. If we look at them properly, I believe they're just pretty lazy now, looks quite tired, having prime of the sun out there in the middle of this Ghani Memorial Cricket Stadium, Srinagar. Only extraordinary and miraculous things can save them from this very much demolition by the batters of SSM. P11 पुलवामा के इन तमाम खिलाड़ियों से हम ज़्यादातर वाकिफ़ हैं, क्योंकि ज़्यादातर हमने जो अपना कमेंट्री का वक्त है, मैदानों पर जो वक्त है वो ज़्यादातर हमने ज़िला पुलवामा में गुजारा है। और इस तरह से यहाँ P11 पुलवामा के लिए एक नई एक्सपीरियंस, इस बीच गेंद को ड्राइव किया है अंसार की जानिब, मिड विकेट फील्डर दौड़े, गेंद को फील्ड किया। तो यहाँ बात कर रहे थे हम, अगर जो कंपैरिजन डाला जाए दोनों टीमों के दरमियान, चाहे वो SSM की बात करें या P11 की बात करें, तो कंपैरिजन के हवाले से बाबा साहब आपको क्या लगता है? Well, I believe we should take comparison in the mind the way SSM Cricket Club is going at the moment. They're batting well, they're going with a great run rate, they're just pushing the ball in the right areas, going for ones and twos in between, hitting boundaries and sixes at the will. And this comparison completely visible at the moment to all us. And the way SSM Cricket Club is going, they're surely having an upper hand in this one. That's a glorious shot. Just waiting for the ball and just driving it square to the right of that backward point fielder. In a hurry, the ball just travels to the fence for 4 runs. ये शानदार शॉट, ये ऑफ स्टंप से बाहर की गेंद मिली, रोम मिला, जिसका बखूबी फायदा उठाया आकिब ने, और इस तरह से वो 38 पर पहुंचे। अगली गेंद और आउट कर दिए गए हैं, वहां कॉट बिहाइंड हुए हैं, और इसी के साथ एक और विकेट। यकीनन इसी विकेट की तलाश थी यहां टीम P11 पुलवामा को, और एक सेट बल्लेबाज आकिब 38 रन बनाकर आउट। And I believe this is surely a wonderful wicket, a great comeback for P11 Pulwama, and we should give credit to Tariq. Second wicket for him, even though a bit expensive, 21 of just 2.4. And here, the rhythm, it has to be implemented upon. They have to really to work out on this very rhythm. They have gone back in the game. The pendulum has now started to oscillate in P11 Pulwama's way, but they need to capitalize on the same. डेफिनेटली यहाँ से एक और विकेट अगर निकल जाए तो मैच में पूरी तरह से वापस आ जाएगी P11 की टीम। और इस तरह से आप देख सकते हैं विकेट कीपर ने बहुत ही बेहतरीन स्टंप्स के पीछे अपना काम अंजाम दिया, और अब जाके नए बल्लेबाज मंजूर आए हैं। और कंपैरिजन के हवाले से बात हो रही थी दोनों टीमों के लिहाज से, तो SSM क्रिकेट क्लब का वसी तजुर्बा है इस मैदान पर खेलने का, हालांकि पुलवामा की टीम पहली दफ़ा यहाँ विजिट कर रही है। But still we believe a great performance from Pulwama, and playing for the first time out here, but knowing nothing about this ground, knowing nothing about the opponents, still doing great out here in this very match. बिल्कुल तारीफ करनी होगी, और लगातार स्पिन गेंदबाजी से काम ले रहे हैं कप्तान मेराजुद्दीन पर्रा। अगली गेंद को खेला है स्क्वायर की जानिब 1 रन के लिए। तो इस तरह से यहाँ अगर प्रोजेक्टेड स्कोर की बात करें, जिस तरह से रन्स बन रहे हैं 10.5 के औसत से, मुझे लगता है कि 200 is definitely on cards. Indeed, if they go with the same run rate, it is more than 10 at the moment. It is 200 on the board. Pretty simple. This time off the back foot, just punches the ball beautifully. There is a long off. Only a single will be resulted. It's over number 13 completed. Score 134 for 4. SSM batting first. ज्वेलरी तो सब खरीद लेते हैं, लेकिन खास ज्वेलरी खास लोग ही पसंद करते हैं। कारीगरी ऐसी जो मन को छू ले, और खिदमत ऐसी जो दिल को छू ले। तो हमें खिदमत करने का मौका दे और तशरीफ लाएं असावीर ज्वेलर्स, कश्मीर का अपना ब्रांड, हरी सिंह हाई स्ट्रीट, श्रीनगर। मुखलिसाना और ताजगी से भरपूर कमल मसाले, वादी का दर्जे अव्वल और अपना ब्रांड। ये सिर्फ मसालों तक ही महदूद नहीं, बल्कि कमवल आप तक जायकेदार अचार और शाही कहवा भी पहुंचाता है। ग़ज़ाइयत और लताफत से भरपूर कमल मसाले रखते हैं आपकी सेहत का ख्याल। हम हैं कमल मसाले।
राइट यहाँ अब 14वां ओवर शुरू हो रहा है और शौकत गेंदबाजी करने के लिए आए। पहली गेंद ड्राइव किया स्ट्रेट टू फील्डर एट शॉर्ट कवर। सो किसी रन का इजाफा नहीं। 135 स्कोर, 4 विकेटों के नुकसान पर। Irfan, let me ask you a question. You know, you have been doing commentary on Facebook for a long period of time, 2.5 years. But doing commentary for the first time on the TV, you know, getting reactions that your commentary now these days looks quite different. You know, we were used to some different platforms. You're getting some messages, getting some phone calls. You know, if you ask me, the same thing happens to me as well. You know, how you would love to explain this all different experience to your viewers, your fans, to the cricket lovers, to the audience, to the we believe the spectators, they are watching us beautifully. You believe it's completely a different scenario. That commentary and this very TV commentary is altogether different from each other. वेल बाबा साहब, आपने एक बहुत ही अहम सवाल पूछा है, बहुत ही बेहतरीन। मैं दाद देना पसंद करूंगा आपके इस सवाल की, लेकिन इसके जवाब में मैं आपको यही कहूंगा कि बचपन में जब रेडियो कमेंट्री हुआ करती थी तो कभी कभार ऐसे भी वाकयात पेश आए हैं कि हम रेडियो को भी ऑन करते थे, अगली गेंद को स्कूप किया है और गेंद गई है फाइन लेग बाउंड्री लाइन से बाहर 4 रनों के लिए। और इस तरह से यहाँ हालांकि 5 रन इस ओवर से इस बारे में बात जरूर करेंगे, लेकिन इस ब्रेक के बाद 14 के बाद स्कोर 140, 4 विकेटों के नुकसान पर। मसाले तो बहुत हैं, पर कश्मीर की कोख से खास चुने मसाले जिनकी ताजगी और स्वाद रहे बरकरार, ऐसे उम्दा मसाले बनाते हैं सिर्फ लज्जत मसाले। आपकी उम्मीदों पर खरा उतरना हर किसी के बस की बात नहीं, इसीलिए जदीद तकनीक से तैयार करदा लज्जत मसाले, जिनमें मिठास से भरा हुआ लज्जत शाही कहवा और लज्जत मिर्च पाउडर, हल्दी पाउडर, सौंफ पाउडर, गरम मसाला। नए ओवर की पहली गेंद, अपील जोरदार और एलबीडब्ल्यू आउट कर दिए गए वहां पर लेफ्ट हैंड बल्लेबाज, और इसी के साथ एक और झटका टीम एसएसएम की टीम को। Strong comeback. I was telling you they can come back. All they need to do is to get a very quick wicket once again, and this is what has been done by Tariq. You can see that ball, just he was trying to slog it across the line, found plump in front of the stumps, and Tariq just chips in with the wicket number 3. वेल हम बात कर रहे थे, आपने सवाल पूछा था कि आज कल हमें ये काफ़ी सारा फीडबैक आ रहा है कि आपकी कमेंट्री आज बिल्कुल डिफरेंट लग रही है। सो मैं यही इसी चीज़ का जिक्र कर रहा था कि जब रेडियो कमेंट्री का दौर था तो अक्सर और बारहा हमने देखा होगा कि बैक वक्त हम कभी कभार रेडियो को भी ऑन करते थे और टीवी भी हमारे सामने होता था, और एक वाज़ह फ़र्क होता था रेडियो कमेंट्री में और टीवी कमेंट्री में। अगर हम बात करें हमारी पिछली जो रही हैं, वो कहीं ना कहीं तकरीबन 70-80% रेडियो कमेंट्री हुआ करती थी, और वजह ये थी कि वहां पर एक ही सिंगल एंगल से हमें मैच दिखाना पड़ता था अपने नाज़रीन को, जिस वजह से हमें पूरी सिचुएशन मैच की डिस्क्राइब करनी पड़ती थी। ग्राउंड का एनवायरनमेंट, फील्डर कहाँ पे हैं, गेंदबाज किस तरह से आ रहा है, किस तरह का उनका बॉलिंग एक्शन है, बल्लेबाज ने किस अंदाज का स्ट्रोक लिया, किस जानिब स्ट्रोक लिया, और किस तरह का बल्लेबाज है, दाएं हाथ का है, बाएं हाथ का बल्लेबाज है, गेंद किस अंदाज से आई, शॉर्ट पिच आई, गुड लेंथ आई, फुल लेंथ आई, बाउंसर आई, ऑफ स्टंप से बाहर आई, लेग स्टंप से बाहर आई, स्टंप्स की लाइन में आई, तो ये सब चीजें वहां पर डिस्कस करनी बहुत लाजमी होती थी। इस वजह से रेडियो कमेंट्री कहलाती थी। और अब अगर यहां बात करें तो यहां बिल्कुल डिफरेंट है, बिल्कुल मुख्तलिफ है उस कमेंट्री के लिहाज से, क्योंकि मल्टीपल एंगल से यहां एएनएन न्यूज हमारे नाज़रीन तक ये लाइव ब्रॉडकास्ट पहुंचा रही हैं, और ऐसे में हमें उतनी ज्यादा चीजों को डिस्क्राइब करना, उतनी ज्यादा चीजों को अपने अल्फाज में वाज़ह करने की यहां कोई जरूरत है नहीं, बजाय कि हम क्रिकेट के इवेंट्स को डिस्क्राइब करें या बॉलर की सलाहियतों को डिस्क्राइब करें, बैट्समैन की सलाहियतों को डिस्क्राइब करें, मैच किस तरह से एक्साइटिंग होगा, गेम प्लानिंग क्या होगी उसको डिस्क्राइब करें, और बाकी दीगर क्रिकेट नॉलेज को डिस्क्राइब करें, तो वो मुझे लगता है टीवी कमेंट्री में बड़ा इफेक्टिव रहता है। और इस तरह से, इसी अंदाज से जो सुनने वाले हैं उनको बड़ा वाज़ेह फर्क महसूस हो रहा है कि आज बड़ी डिफरेंट कमेंट्री हो रहे हैं। और लेकिन मैं उनके लिए बता दूं कि टीवी कमेंट्री और रेडियो कमेंट्री में एक वाज़ेह फर्क होता है। And Irfan, one more thing I would love to know from you, just from one platform to another platform of the commentary, you believe it was a bit difficult for you to shift and switch?
इस ओवर की अगली गेंद और काफी फाइन खेला इस गेंद को, फील्डर कोई मौजूद नहीं, बाउंड्री लाइन से बाहर, 4 रनों के लिए गेंद। वेल, आपने सवाल बिल्कुल सही पूछा। अचानक से उस कमेंट्री से निकलकर यहाँ टीवी कमेंट्री में आना, एक अगरचे हमारे पास महारत ना होती कमेंट्री में, अगरचे क्रिकेटिंग नॉलेज ना होती, और वो भी यहाँ अगर हम देखें तो स्क्वायर लेग एंगल से हम कमेंट्री कर रहे हैं, तो यकीनन एक चैलेंज था। लेकिन इस चैलेंज पर खरा उतरना मैं समझता हूं बहादुरों का काम है, और बिल्कुल हमने इस चैलेंज को एक्सेप्ट किया और बहुत ही बेहतरीन अंदाज से कोशिश कर रहे हैं हम अपने नाज़रीन तक इन लाइव विजुअल्स को बेहतर से बेहतर अंदाज में डिस्क्राइब करने की। और जहां तक आपने सवाल पूछा कि टीवी कमेंट्री, मुझे तो बड़ा मजा आ रहा है, मैं काफी एंजॉय कर रहा हूं। और यकीनन असल कमेंट्री अगर देखें तो टेलीविजन का दौर है, टीवी कमेंट्री का दौर है, रेडियो का दौर खत्म हो गया, और हमारे लिए खुशकिस्मती है कि हमें मौका मिला है टीवी कमेंट्री का। अपील जोरदार, अंपायर ताखीर के साथ उंगली फिजा में, और इसी के साथ एक और विकेट और बेहतरीन वापसी। अब यहां मुझे बिल्कुल लग रहा है कि 200 तक पहुंचना बड़ा मुश्किल लग रहा है एसएसएम के लिए। Indeed, we should definitely give credit to the bowler Tariq over there. Just watched his ball closely, and he was just trying to give it a fine touch down to the final region. Ultimately, the decision from the umpire, even though a bit late, but straight he goes up in the air, and the finger raised up. We see 6 batsmen now walking back to the pavilion, and let's have a look at the Tariq's figure. He finally completed his quota 4 overs with an economy of just 7 runs, but 4 wickets to his name. Is the game changer for P11 Pulwama. तारिक की बात करें तो आज वो बिल्कुल गेंदबाजी के लिहाज से काफी बेहतरीन तौर पर उभर कर सामने आए हैं टीम P11 की जानिब से। यकीनन मैं समझता हूं उनके 4 ओवर जो हैं जिसमें उन्होंने 4 विकेटें हासिल की हैं, एक मजबूती और एक खुशकिस्मती टीम P11 पुलवामा के लिए। आखिरी गेंद थी उनके ओवर की, और इस आखिरी गेंद पर भी उन्होंने बेहतरीन अंदाज से कारनामा अंजाम दिया और 6ठा विकेट गिरा 145 के स्कोर पर, जबकि एसएसएम की टीम यहां मुश्किलात में फंसती भी नजर आ रही है। Indeed, they are being covered, they are being surrounded by some more difficulties, losing wickets after wickets, 6 of them, and now we see Shaukat into the attack, right arm off, just waiting for the ball. Captain Riyaz's goal, deflecting it down to the short mid-wicket region, and there is one more run. And let's talk about that short mid-wicket region. I believe Captain Maraj, if he brings a fielder on that catching position, it might be difficult for the batters to steal in and sneak in for those singles. And if it becomes difficult for the batters to steal those singles, they surely will be tempted for using aerial routes. यकीनन अगर देखा जाए अभी भी हालांकि 5 ओवर बाकी हैं, 4.5 ओवर, तो यहाँ से टीम को जो स्टार्ट मिला है तो चाहेंगे अभी सिंगल से ही काम ले तकरीबन 1.5 ओवर तक, उसके बाद अटैक करें, क्योंकि डेथ ओवर्स की गेंदबाजी होगी, उसके बाद गेंदबाजी में भी तब्दीली होगी। क्या फास्ट बॉलर्स एक बार फिर से आएंगे? फिलहाल अगली गेंद को उठा दिया है, उड़ता हुआ शॉट, और गेंद सेफली लैंड हुई है कव कॉर्नर बाउंड्री लाइन से बाहर, जोरदार छक्का। Well, that was on the slot. I believe that was on the slot. Simply needed to do just dispatch it out of the mid-wicket region. But one thing was sure, he brought all the power behind that stroke. And looking at his physique, such a tall batsman, and it's quite simple and possible for this man to just hit it coming in the line, and all easy for this Akib, I tell you. But back to P11 Pulwama, they need to control these flow of the runs at the moment if they want to be back stronger in the game. And they have to be surely very strong as per the fielding and bowling is concerned. यहाँ बिल्कुल बड़ी मजबूती के साथ एक बार फिर से लय पकड़ी है। 152 स्कोर पहुंचा है एसएसएम क्रिकेट क्लब का। 6 विकेटों के नुकसान पर आकिब 6, उन्होंने छक्के से खाता खोला, और एक बार फिर से अब परेशानी के आसार, परेशानी के मनाजिर इस वक्त P11 के चेहरों पर। अगली गेंद मिस फील्ड हुआ बैकवर्ड पॉइंट के फील्डर से, क्या गेंद को रोका जाएगा? नहीं, बिल्कुल नहीं, और गेंद बाउंड्री लाइन से बाहर गई है 4 रनों के लिए। Well, 6 followed by a boundary. This needed to be stopped out there by the backward point fielder, not getting it, stretching himself down to the right top edge, and even though
We see deep point fielder also not getting to the stuff of the ball, and it's 10 runs of these two balls, and slowly and steadily SSM not losing the grip. They are just 156 for the loss of 6, and Akib chipping on 10 of just 3 balls. This time driven off the upside. There is a sweeper behind, just a singly cruising, and telling you once again SSM Cricket Club finding themselves back in the game. But we believe this is all possible the way they got off the start. Captain has now lead from the front of taking his team to some kind of total where they believed they can be pretty safe in this all important encounter. वेल आखिरी गेंद डॉट इस ओवर की 16वें ओवर के इख्तिताम पर स्कोर एसएसएम का 157, 6 विकेटों के नुकसान पर 4 ओवर बाकी. Royal Concepts makes you royal. Royal Concept, Bacha Chowk, Lal Chowk, Srinagar. J&K 190001. 17वें ओवर का आगाज और इब्तिदा पहली गेंद को गाइड करते हुए खेला है शॉर्ट थर्ड मैन की जानिब. और बात करते हैं फील्डिंग की. अब एक बार फिर से खराब फील्डिंग, जहां पर रन नहीं मिलना चाहिए था वहां पर रन मिल रहे हैं, और जहां बाउंड्रीज नहीं मिलनी चाहिए वहां पर बाउंड्रीज आ रही हैं. यकीनन अगर देखा जाए तो पीस 11 की फील्डिंग भी आज मुतासिर कर देने वाली नहीं रही है. Indeed, at first they were surely great with the catching. Oh, yes, you did mention. We have the example through the ball just crosses over down the long off, I believe. Not great piece of stop, not great piece of fielding over there from piece 11 Pulwama. Playing in the shorter format of T20, these runs need to be stopped because just a margin. Still comes to my mind yesterday, West Indies, just a margin of 4 runs. And if you stop these kinds of runs, definitely, results come altogether different for you. So every saved run does count for the result of the game, any format. फील्डिंग नहायती अहमियत की हामिल रहती हैं. And on your screen is Mr. Tariq Batsab, who is the chief of ANN News. Indeed, and he is the organizer of J&K Qualifiers League as well. Such a wonderful platform he has set. If I talk about the young cricketers of this Kashmir Valley, we would have never imagined, we would have never thought this kind of platform will be provided. Next one, just beautifully played, using the depth of the crease and just flashing the ball down to the deep fine leg region for 4 runs. नहायती उम्दा और बड़ा जबरदस्त पुल शॉट ये बल्लेबाज आकिब की जानिब से, जिसको उन्होंने बड़े बेहतरीन अंदाज से यहां पर गेंद को घुमा दिया बैकवर्ड स्क्वायर लेग बाउंड्री लाइन की जानिब 4 रन के लिए. और आखिरी गेंद इस ओवर की अब तक 8 रन आ चुके हैं. अगली गेंद को बैकवर्ड जाकर हल्के हाथों से मिड विकेट की जानिब मोड़ा है. 1 रन मुकम्मल किया, दूसरे के लिए भागना चाहते हैं लेकिन एक ही से मुतमईन हुए. 17वें ओवर के बाद स्कोर 166, 6 विकेटों के नुकसान पर 3 ओवर बाकी. इंजीनियरिंग हो या मेडिकल, आकाश इज बेस्ट. आकाश का फोकस अपने हर बच्चे पर बिल्कुल बराबर होता है. आकाश में हम शुरुआत बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ करते हैं. होशियार से होशियार बच्चे को भी सही कोचिंग और सही गाइडेंस की जरूरत है. देखिए, आकाश अपनी बेस्ट फैकल्टी, बेस्ट करिकुलम और यूनिफॉर्मिटी सिस्टम की वजह से जाना जाता है. तो बच्चे का एडमिशन चाहे कश्मीर की ब्रांच में हो या फिर चेन्नई की ब्रांच में हो, उससे उसकी तैयारी पे कोई अंतर नहीं पड़ता. मैं तो यही सजेस्ट करूंगी कि आप बच्चे का एडमिशन अपनी नजदीकी ब्रांच में कराएं ताकि बच्चे का ट्रैवलिंग में कम टाइम लगेगा. वीडियो गनी मेमोरियल क्रिकेट स्टेडियम राजौरी कदल श्रीनगर में तमाशाइयों का बड़ा हजूम और दिलचस्पी के साथ तमाशाई इस मैच का लुत्फ लेते हुए, और इस तरह से हम बड़े मशहूर हैं तमाशाइयों के भी कोऑपरेशन से.
सो इस तरह से Irfan, let me tell you one thing. Maybe you don't take it personal. Everyone is being given a bit of a visual. They are being shown on the screen, and you believe commentator is not being, so far given a bit of a visual. मुझे तो इस बात का मलाल रहेगा कि कमेंटेटर्स अभी भी, आज हालांकि ये छठा मुकाबला है, लेकिन कमेंटेटर्स अभी भी स्क्रीन पर नहीं आ रहे हैं. ये तो मुझे लगता है, ये दिल खराश बात है. Anyway, just have patience. You will be given this kind of the visuals as well. And we're back to the game. It's gonna be over number 18, and we see a fresh bowler. It's Muzaffar now starting off right from the far end into bowl to Aki, batting on 18 of 8, and Riaz Gul, the captain, who has been a slow starter, just 4 of 5. तो देखना होगा कि आने वाले 3 ओवर्स में किस हद तक जा पाएगी एसएसएम की टीम. पहली गेंद स्टीयर की ऑन साइड की जानिब, स्क्वायर लेग फील्डर आए, 1 रन का इजाफा हुआ. दूसरे के लिए भागने की कोशिश, लेकिन एक ही से मुतमईन, और 167 6 विकेटों के नुकसान पर, जबकि यहाँ से अभी भी पॉसिबल हैं 200 का टारगेट अचीव करना. Well, talking about captain Mr. Riaz, at the toss presentation he did mention we would definitely love to put a score of around 200 on the board. Next one, across the line plays it. Oh my goodness, can you believe it? Just a floppy fielding effort from this square leg fielder. It could have been just a single and 4 runs result. एक बार फिर से वही बात सामने आई, वही मसला फील्डिंग का सामने आ रहा है P11 पुलवामा की जानिब से. आप देख सकते हैं कि पुल तो बड़ा जबरदस्त था, लेकिन फील्डर अपनी पोजीशन पर आ गए थे और अचानक से मान लीजिए जैसे उनके हाथों से गेंद और निकल गई और उनको गेंद पर पूरी तरह से नजर नहीं थी. तो एक बार फिर से जहां पर एक ही रन बनना चाहे था, वहां पर 4 बने. And they are reaching 180, 171 for 6, and I believe Riaz Gul must be कैप्टन एट द मोमेंट. रियाज गुल की अगर बात करें, उन्होंने टॉस के वक्त बिल्कुल वाज़ेह किया था कि वो आज 200 तक जाना चाहते हैं, क्योंकि पहले बैटिंग करने की वजह यही है कि उन्होंने पिछले मुकाबले में चेज करना बिल्कुल उससे नाकामयाब हुए थे. चेज करने से नाकामयाब रहे थे 19 रनों से, और आज टॉस जीतकर उन्होंने पहले बैटिंग करने का फैसला इसी वजह से लिया कि वो एक बड़ा टोटल कायम कर सके. अगली गेंद डॉट गेंद, और यहाँ वापसी करनी होगी गेंदबाजों को, क्योंकि अब स्पिन गेंदबाजों को बिल्कुल रोका गया है. और जो अब आखिर के जो 3 ओवर्स हैं, कप्तान मेराजुद्दीन पर्रा कहीं ना कहीं अब अपने फास्ट बॉलर्स को यूज करने जा रहे हैं, और देखना होगा कि वो किस हद तक कामयाब हो पाएंगे. Indeed, that's when you're having the death overs on, you need to rely more on your fast bowler. Next one, deflected beautifully, just waiting for the ball come closer, and all you need to do is just giving it a delicate touch down to the deep long leg region. 4 runs. So second boundary after over. It's 175 for 6, and captain's knock here from Riaz Gul is the man responsible for taking his team SSM to that great score, a massive and a mammoth score on the board. It's 175 for 6, and this man is batting on dozen of 8. Riaz Gul, the captain. Once again, Muzaffar goes, and this one, that is up in there. Has it gone all the way? Just waiting for the signal. Yes, up goes the fingers, up goes the hands of the umpire. That's a massive shot from Riaz. Wow, just making sure, just leaning forward and dispatching the ball out of the ground. ओवर पिच डिलीवरी थी और बल्लेबाज के रडार में, और इस तरह से रियाज गुल की अगर बात करें, यकीनन उन्होंने अपनी बाजों की ताकत का इस्तेमाल किया, गेंद को उठा के खेला मिड विकेट बाउंड्री लाइन से बाहर, एक शानदार और उम्दा छक्का. तो इस तरह से यहाँ ये ओवर काफी महंगा, अब तक 15 रन आ चुके हैं. एक बार फिर से कोशिश छक्का लगाने की, लेकिन डॉट गेंद के साथ ही ओवर की तकमील. 18 के बाद 181, 10.6 की औसत से रन बन रहे हैं 6 विकेटों के नुकसान पर. आपके शहर में सैमसंग लाया है इजी शॉपिंग के लिए एक एथोराइज स्टोर, जहां पे आप अपने घर के लिए ले सकते हैं अच्छे अप्लायंसेस. सैमसंग स्मार्ट प्लाजा, बेबी बेन, जवाहर नगर, जहां आप टीवी, वॉशिंग मशीन, माइक्रोवेव, एसी, लैपटॉप, स्मार्ट वॉच, मोबाइल फोन्स या एसेसरीज ले सकते हैं. वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स
विद सैमसंग फाइनेंस प्लस फैसिलिटीज, जो आपकी जेब का प्रेशर कम करेगा और आप अपने घर के लिए मनपसंद अप्लायंसेस बिना बजट कॉम्प्रोमाइज कर ले जा सकते हैं। अगर आप करना चाहते हैं बहुत सारी शॉपिंग और लेना चाहते हैं बहुत सारे प्रोडक्ट्स, विजिट सैमसंग स्मार्ट प्लाजा। 19 ओवर का आगाज, पहली गेंद काट किया, शानदार स्क्वायर काट, गेंद टच कर गई बाउंड्री लाइन का, 4 रन्स। And Mehraj Parra, having hope in himself, having belief, having trust, having strength in his bowling, and he comes up to bowl this all-important 19th over, and he was given a massive boundary on the very first ball. 185 for 6. Once again, he goes to Akib. Off the back foot, he was trying to cut, no, a bit quicker, missing the line completely. Wicketkeeper doing the job behind the stumps. And let's have a look at the bowling spell of Mehraj Parra, the captain. 3.2 overs, a wicket to his name, but 40 runs conceded. Very expensive. काफी महंगे साबित हुए हैं। अपने आखिरी ओवर में गेंदबाजी कर रहे हैं, वाइड का इशारा किया अंपायर ने, और यहां से अब बिल्कुल साफ तौर से दिखाई दे रहा है कि 200 से ज्यादा रन्स भी यहाँ टारगेट मिल सकता है पीस 11 पुलवामा को, जो कि मुझे लगता है बहरहाल यहाँ इस मैदान पर जिसमें वसी डायमेंशंस हैं, वसी बाउंड्रीज हैं, तो चेज करना एक बहुत बड़ा चैलेंज रहेगा पीस 11 के लिए। Indeed, it can be quite challenging. Next one, DailyHunt beauty. That has gone out of the ground, I tell you, onto the roof of that building. Wow, that's a wow shot from Akib. My goodness, just making sure, leaning forward and slugging it over for a beauty of a slug. Wow. कोशिश की थी फील्डर ने जंप लगाकर कैच पकड़ने की और कामयाब नहीं हुए। अगली गेंद एक बार फिर से उड़ता हुआ शॉट, लेकिन फील्डर इस मरतबा मौजूद, उन्होंने बड़ी मेहनत के साथ गेंद का फील्ड किया एक बाउंस के बाद, और स्कोर अब धीरे धीरे 200 के करीब तर पहुंचता हुआ 193, 6 विकेटों के नुकसान पर, जबकि इस ओवर की अभी भी कुल मिलाकर 2 गेंदें बाकी हैं। 5वीं गेंद स्लॉग करने की कोशिश, लेकिन डॉट गेंद, बाल बाल बचे और पिछला घुटना जमीन से टेक कर ऑन साइड यानी मोड़ने की कोशिश की थी बल्लेबाज ने। आखिरी गेंद बचे हैं ओवर की, और यहाँ इस ओवर से भी खासे रन, 12 रन आए हैं अब तक, और यकीनन अगर इकोनॉमी देखें कप्तान मिराजुद्दीन पर्रा के, तो ही हैज वेंट फॉर 48 रन्स फॉर 1 विकेट, और आखिरी गेंद किस तरह से फिनिश कर पाएंगे यहाँ इस ओवर में पर्रा। फ्लाइट का एक बार फिर से इस्तेमाल, बैकफुट पर जाकर गेंद को जोरदार अंदाज से खेल दिया है, और गेंद गैप में गई है 4 रनों के लिए। Oh my goodness, he has finished it at 52 runs. Well, the most expensive over after J&K Qualifier, rather most expensive spell of the J&K Qualifiers league so far. 4 overs, a wicket, and 52 runs conceded by Mehraj Parra, the captain of Peace 11 Pulwama. And talking about our SSM, they're just 3 runs short of 200, 197 for 6. And look at the bowling scorecard. तो यहाँ 52 रन, 23 रन पहले एक ओवर में दिए हैं आदिल सूफी ने, और इसके साथ साथ अगर देखा जाए 13 का इकोनॉमी है मेहराज पर्रा के पास, और तारिक वानी अब तक के सबसे कामयाब बॉलर, उन्होंने 4 विकेटें हासिल की हैं। आखिरी ओवर, और आखिरी ओवर के लिए किस गेंदबाज को तलब किया जाएगा, यहाँ ये भी एक सवाल। फिलहाल नियाज को लाया गया है, अब देखना होगा नियाज किस तरह से कामयाब हो पाएंगे। हालांकि आखिरी ओवर हैं, और टीम एसएसएम क्रिकेट क्लब के ये 2 जांबाज कप्तान रियाज गुल और आकिब चाहेंगे कि यहां तकरीबन 210-215 हदफ मिलना चाहिए टीम पुलवामा को। पहली गेंद उड़ता हुआ शॉट, ये डाउन द ग्राउंड, oh my goodness, what's going on? That is another boundary down towards long on. And Irfan, you said what's going on? Let me tell you, it's a boundary is going on, and boundary is coming in a flurry and in a hurry, and from both the batters of Akib and Riaz Gul. Guess what? They crossed 200, it's 201 for 6. I believe very, very difficult for Police 11 Pulwama to win this match from here onwards. But glorious uncertainty is always associated with the game of cricket. They may be the winners, but they need to get a good start. 200 रन मुकम्मल, और इस ओवर की अगली गेंद ऑफ स्टंप से बाहर कट करने की कोशिश। एक डॉट गेंद इस ओवर में आई हैं, और इस तरह से 4 गेंदें बची हैं, तो 200 का आंकड़ा, हालांकि 10.40 की औसत से अभी भी रन बन रहे हैं, और
मस्बत बात। यहाँ अगली गेंद ड्राइव किया और बड़ी अजीब गरीब फील्डिंग, वहां बिल्कुल हाथों से रोकना चाहिए था लेकिन उन्होंने अपनी टांगों से रोका और अपनी टांगे तोड़ के रख दी। Is it pressure speaking on them? वेल ये तो काफी आसान सी फील्डिंग थी, बड़ी तेज रफ्तार से गेंद उनकी तरफ जा रही थी। मुझे लगता है कि उन्होंने अपनी टांगों की भी फिक्र नहीं की। कप्तान थे मेराजुद्दीन। Oh, next ball, trying to scoop it and captain just missing the line completely and is bowling. Even though getting the wicket, but it's too late for P11 Pulwama. 202 for 7 now, and Riyaz Gul departs 22 off 12. वेल बाबा निसार साहब, मुझे लगता है इस अंदाज से मेराजुद्दीन पर्रा ने गेंद को टांग से रोका कि कल मुझे लगता है वो उठ नहीं पाएंगे। Well, but he's not going to disclose it at the moment. You know, he just wants to be so strong, just wants to display that he's still brave enough. And not, we believe disclosing it and displaying that he is being hurt over there, just hitting on his legs. अपनी टांगों की परवाह ना करते हुए है यहाँ मेराजुद्दीन पर्रा गनी मेमोरियल क्रिकेट स्टेडियम पर। हालांकि रियाज गुल ने एक बड़ी अच्छी पारी खेली है, 13 गेंदों में 22, 3 चौके और 1 छक्का। इससे बेहतर कप्तान से आप तवक्को नहीं कर सकते हैं। और अगर देखा जाए तो अब यहाँ इरफान आए हैं नए बल्लेबाज की हैसियत से टीम एसएसएम की जानिब से। और आज जो परफॉर्मेंस, आज जो कारकर्दगी बल्लेबाजी में दिखाई है एसएसएम ने, ये देखिए बिल्कुल स्कूप करने के लिए गए थे लेकिन स्टंप्स की लाइन में होकर लेंथ ये गेंद थी। And now let's wait for the last 2 balls. It's going to be Irfan getting ready to face Niaz. It's 202 for 7. He will definitely love to have Akib to face that last ball. He's batting on 35. In he goes, full toss. Once again to Mehraj. Oh my goodness, what's going on with Mehraj? This time not using his legs to stop the ball, just using his hands and eventually not stopping the ball. Irfan, what's going on with him? बिल्कुल इस चीज़ का मैंने पहले ही जिक्र किया कि जिस तरह से पुलवामा की टीम की आज फील्डिंग रही है, बहुत ही नाकिस, बहुत ही गलत फील्डिंग और बहुत ही दिल को उदास कर देने वाली फील्डिंग रही है आज पुलवामा की जानिब से। यकीनन अगर देखा जाए तो 40-50 रन ऐसे उन्होंने नाकिस फील्डिंग की वजह से दिए हैं। आखिरी गेंद और इस गेंद को ड्राइव किया है लॉन्ग ऑन की जानिब, क्या 2 के लिए आएंगे? वहां पर फील्डर ने गेंद को फील्ड किया, 2 रन बड़ी आसानी से हासिल हुए हैं और इस तरह से 206 पर स्कोर रुक गया है एसएसएम क्रिकेट क्लब का, यानी 207 रनों का टारगेट मिला है टीम P11 पुलवामा को ताकुब करने के लिए। लेकिन क्या शानदार इनिंग्स खेली है यहां टीम एसएसएम क्रिकेट क्लब ने। वेल स्कोर कार्ड 50 रन बनाए सजाद मकबूल ने, आसिफ भट्ट 6, बासित बिलाल 21, 38 बनाए आकिब यूसुफ ने। उसके बाद बेहतरीन पारी खेली रियाज गुल ने 22 रन और आकिब वानी ने जिस अंदाज से फिनिश किया 35 रनों पर, दैट इज एब्सोल्युटली ब्रिलियंट। सो 10.35 का रन औसत और इस तरह से एक्स्ट्राज 12 एक्स्ट्राज तो उतने ज्यादा खर्च नहीं किया हालांकि जितना यहां पर मामूल रहता है, और इस तरह से फील्डिंग जो रही वो नहायत ही खराब रही। एंड टॉकिंग अबाउट द बॉलिंग परफॉर्मेंस फ्रॉम PS11 पुलवामा, इट्स एब्सोल्युटली यहाँ बिल्कुल खराब बॉलिंग। मुजफ्फर अहमद 2 ओवर कोई मिडन नहीं 21 रन, आदिल सोफी 1 ओवर 23 रन कोई विकेट नहीं, नियाज वानी 4 ओवर 27 रन 2 विकेट, मेराजुद्दीन पर्रा 4 ओवर 52 रन 1 विकेट, तारिक वानी ने सफल गेंदबाजी की, कामयाब गेंदबाजी की 4 ओवर 28 रन 4 विकेट और उसके बाद कोई भी गेंदबाज विकेट लेने में कामयाब नहीं हुआ। फॉल ऑफ विकेट्स की बात करें, पहला विकेट 62 पर, दूसरा विकेट 62 पर और इसी तरह से विकेट्स गिरते गए जब तक कि 6 विकेट गिरे। वेल दिस इज द मैच समरी सो फार। सज्जाद जिन्होंने हाफ सेंचुरी की इज द हाई स्कोरर और बहुत ही अच्छे से यहां पर फिर कोऑर्डिनेट किया है आकिब और आकिब ने। इसके साथ साथ अगर तारिक की बात करें उन्होंने 4 विकेट हासिल की और ये थी कहानी फिलहाल एसएसएम क्रिकेट क्लब की पारी की। मिलते हैं ब्रेक के बाद एक बेहतरीन रन चेज के साथ। देखना होगा कि P11 पुलवामा किस तरह से वापसी में जवाब दे पाएगी।